السلام علیکم۔ وہ عشق جو ممنوع نہ رہا کہ 17 بہت ہی اسپیشل اور مزیدار ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں، تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ میں کچھ کہنے کی کوشش میں ایمان کے لب ہلے، پر ستم یہ کہ مقابل کی سرد نظر نرم لہجے پر ایسی باری تھی کہ ایمان سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ کیا میں ہاتھ بڑھا کر اس کی گال سے ہلاتے بولنے کی ہمت دی، پر وہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری چپک چپک کر نہ جانے کیسا بوجھ سا دل پر لیے خاموش پر بزید رہی۔ ایمان ساحر کو اس کی خاموشی تنگ کر رہی تھی، تبھی ساحر کے لہجے میں مرتی ناراضگی پر ایمان نے اپنے گال سے جڑی اس کی پرحدت ہتھیلی پکڑی۔ میرا دل نہیں بھرانا، میں نہیں جانا چاہتی، ایمان نے اس کی آنکھوں میں تکتے بنا سوچے وہ کہا جو اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ ساحر حیران تھا، کیا وہ یہی وہ مصوفہ ہے جن کا آتے ہوئے قربت سے ہارٹ فیل ہوئے جا رہا تھا؟ تو دل کیسے بھرے گا؟ ساحر نے اس کی کمر کے پیچھے سے ہاتھ لے جاتے آہستگی سے بازو گھماتے ایک جھٹکے سے اس کی جانب کھینچا، جس پر ایمان کے چہرے کی رنگت ساحر کی قربت کے سبب بدلی۔ اس کے سینے سے جا لگتے وہ ہاتھ اس کے شانے پر جما کر روبرو ٹھہر سکی۔ آپ جانتے ہیں ایسے بہیو نہیں کریں۔ ایمان کچھ سمجھ نہ پائی کہ کیسے سمجھائے کہ اس کی ذرا سی لاتعلقی وہ نہیں سہ پا رہی۔ ایک مرد کا دل اپنی پسند و ملکیت میں آئی عورت کے لیے بہت بے صبرا ہوتا ہے ایمان، میں نہیں چاہتا تم مجھ جیسے متحمل انسان کا وہ بے صبرا پن اس غیر مناسب وقت پر دیکھو۔ اب ضد چھوڑنے کا پلان ہے یا نہیں؟ ساحر کے بولتے سمے لب اس کے ہونٹوں سے بہت قریب تھے اور اسی سانس در سانس سنگم سے بچنے کو ایمان نے چہرہ سانس کھینچے سرکایا، اور تبھی ساحر کے ہونٹوں کی حدت سے اپنی گال میں اترتی محسوس ہو کر اگلا سانس تنگ کر گئی۔ چھوڑ دی ضد، چھوڑ دی پکا۔ ایمان نے اسے کترانے کی بھرپور کوشش کرتے فوری منت بھری سرگوشی کی، اس کا مضبوط حصار توڑنے کے جتن تیز کیے، جس کے سبب وہ واپس اسی پوزیشن میں آئی جہاں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں میں بساتے دکھائی دیے، ایک دوسرے سے خود کو چراتے کوشش کرنا رخصتی سے پہلے ایسی ضد کر کے میرا صبر دوبارہ نہ آزماؤ۔ خود کو بہت مشکل سے ان سانسوں کی خوشبو میں مدہوش ہونے سے روک کر ساحر نے اسے بازو کی گرفت سے آزاد کیا، جس پر وہ سہم کر اس سے سرکتی کار ڈور سے جا لگی، اور اس کا یہ فرار ساحر کو مسکراہٹ دے گیا۔ بعد میں بھلے کر لوں ضد، ڈرے ہونے کے باوجود اس لڑکی کو اپنی جان ذرا پیاری نہ تھی۔ ساحر نے گاڑی سٹارٹ کی اور ٹھیک عالم ہاؤس کے باہر روکی۔ بعد میں تم بھلے جان بھی لے لینا۔ ساحر کے جذب بھرے جملے پر ایمان کا سارا ڈر کہیں بگ سے اڑ گیا، تتلیاں سی دل میں پھڑپڑا اٹھی۔ میں سچ میں لے لوں گی جان، ایمان نے دبی سی شریر مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیرتے وان کیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ساحر کی ایک اظہار بھری اجازت نے خشک کر کے امیدوں اور مسکراہٹوں کے لمس بکھیرے۔ تمہیں میرے دیکھنے سے سمجھ جانا چاہیے کہ جان کس کے جانے کا خطرہ ہے، اب حد کریں یہ ملاقات۔ ساحر کے الفاظ میں شدت و جنون کی آمیزش تھی، تبھی وہ فوری سے نظر کترا کر ہٹا گیا۔ کیا آپ کے پاس باتوں کی کمی ہے؟ ایمان نے بنا اس کے سوال کا جواب دیا آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا، اس کے چھونے کی حس ظاہر سے زیادہ طاقتور تھی۔ نہیں، ایسا لگا تمہیں ایسا لگا ہے تو ہوگی کمی۔ وہ انکار نہ کر سکا کیونکہ ایسا ہی تھا۔ ایمان نے مسکرا کر اس کی پھیری نظر دیکھی، وہ اسے اس لمحہ نہ دیکھ رہا تھا نہ دیکھ سکتا تھا۔ میں سکھا دوں گی آپ کو باتیں کرنا، پھر مجھ سے کیا کریں گے؟ ایمان کے معصومانہ سوال پر ساحر نے بہت روکا خود کو، پر ایمان کو دیکھنا اس لمحے بہت ضروری تھا۔ پوری کوشش کروں گا کیونکہ مجھے اچھا لگے گا تم سے باتیں کر کے۔ ایمان کو اس کے اعتراف درکار تھے، اس کے جذبات کی تپش درکار تھی، اس کے لمس کی حدت تو بہت بات کی خواہش تھی۔ کیوں لگے گا؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ایمان آہستہ آہستہ اس کے بالکل ساتھ آ لگی، دونوں کے چہروں میں بہت کم فاصلہ تھا۔ ایک دوسرے کو سانس لیتے محسوس کرنا کتنا خوبصورت احساس ہے، یہ ایمان کو آج پتہ چلا۔ ہاں ہے، میری پہلی اور آخری خواہش تمہارا سکون اور خوشی بننا ہے ایمان۔ وہ خود نہ سمجھا بے خودی میں کیا کہہ بیٹھا ہے، ہوش میں ایسا سب کہاں ممکن تھا؟ اس لمحے وہ اس کے خواصوں پر سوار تھی۔ ایمان کے اندر بہت سے سوالات کا شور تھا، پر ابھی وہ اپنے اور ساحر کے بیچ بے چینی نہیں چاہتی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ بنے ہیں؟ ایمان کو یہ سوال پوچھتے ہوئے گھبراہٹ ہوئی۔ ساحر جبران کی آنکھیں اس کے الفاظ کے مقابلے میں بہت بول رہی تھی، بہت شور کر رہی تھی۔ بس ایمان، اب جاؤ۔ ساحر اپنا زہر پلانا تو دور، آج ایمان کی موجودگی سے چاروں شانے چت تھا، تبھی چاہتا تھا وہ چلی جائے۔ چہرہ بھی موڑ لیا اور اپنا ہاتھ بھی چھڑوایا۔ مجھے ایک بار پھر دیکھ لیں۔ ایمان نے پھر سے اس کے نزدیک سے رکھتے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ملائم لمس نے ضرور ساحر کو نہ دیکھنے کی قسم توڑی۔ گردن گھمانی پڑی۔ مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ آ کر۔ آپ کو اچھا لگا؟ ایمان کی معصومانہ خوشی پر ساحر نے گہرا سانس بھرا۔ نہیں، سو نہیں سکوں گا اب کئی راتیں۔ ساحر کے جواب پر ایمان مزید اس کے نزدیک سرکی، جانے وہ کیا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی نزدیکی ساحر کو سکون دے رہی تھی۔ وہ خود بھی یہ لمحے اختتام کی طرف سرکنے نہ دینا چاہتا تھا۔ پہلے وہ اس کے قریب جانے سے ڈر رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس لمحہ خود کو روک نہ سکی، اور قریب جڑ کر بیٹھتے ہی اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس نے اتنے ملائم طریقے سے اپنے ہونٹوں کو ساحر کے ہونٹوں کی ذرا سا نیچے ٹھوڑی سے جوڑا کہ اس تتلی جیسے لمس پر وہ خود لحظہ بھر نشاط کی اس لہر کو مزید گہرا محسوس کرنے کو آنکھیں موند گیا۔ وہ فوری اس کی خوشبو میں سانس بھرے اس سے دور سرکی۔ ساحر کی بند آنکھیں کھلتا دیکھنا ایمان کو عجیب سی سرشاری دے گیا۔ جذبات سے بھری نگاہیں بول بول کر ایمان کو بوکھلاہٹ دینے کی کوشش میں تھی، پر نہ جانے کہ اس کا سارا ڈر زائل ہو گیا۔
आप मेरे फेवरेट हैं साहिर, सबसे फेवरेट। पहले का नहीं पता लेकिन अब आपका मेरे पास होना मुझे सुकून और खुशी दे रहा है बहुत सारी। ईमान ने उसकी खुलती आंखों के खुमार के सबब फ़ौरन लरज़ कर अपने जज्बात बताने में साहिर को हरा कर नज़र झुकाई और अपने इस लम्स की वजह अपनी सरगोशियों में समेट कर देती अपना बैग लिए डोर ओपन किया, फौरी गाड़ी से निकल गई। और सितम यह कि साहिर इसे रोक तक ना सका, बस हाथ ही बढ़ाता रह गया। फ़ौरन गाड़ी का डोर ओपन किया बाहर निकला, पर वो गेट अबूर के आलम हाउस के मेन गेट को पार करके उसकी नज़रों से ओझल हो गई थी। अपने पास ले आने पर मजबूर कर गई हो तुम मुझे तकदीर मान। आह साहिर आह, तुमसे अच्छी तो वो लड़की निकली जो बिना खौफ के अपने दिल की मासूम शिद्दतें तुम पर निछावर कर गई। और तुम सोचते रह गए मोहब्बत के ढंग और सलीके, जो सलीके और ढंग से करनी पड़े वो भी भला मोहब्बत है कोई। साहिर जिब्रान की मुतबस्सम खुद कलामी में सरूर और बेकरारी के का एक साथ रक्स था जो इस रात की तारीकी को रोशनी में बदल गया। लेकिन इसी सरगोशी का अख्ताम ऐसी दरमानदगी पर हुआ कि वो रोशनी देखते ही देखते मुहीब सन्नाटे में बदल गई, क्योंकि गाड़ी के सामने अनान इब्राहिम खड़ा हिसाब मांग रहा था। साहिर ने खुद को होश दिलाते कार डोर ओपन किया और वापस बाहर निकला। अनान की आंखों में सालिम निकल लेने की कुव्वत थी। स्ट्रेट लाइट के सबब बीच सड़क खड़े वो दो बआसानी एक दूसरे को देख सकते थे। हमें टेबल टॉक की ज़रूरत है, साहिर जिब्रान ने सलीके से ही बात शुरू की, मगर अनान को उसका जुमला और सुकून ऐसा काटा कि वह न सिर्फ लपका बल्कि एक ही झटके से साहिर का गिरेबान दबोचा। साहिर में अपने गिरेबान को छुड़वाने और इस गुस्ताही की सज़ा देने दोनों की अहलियत थी, पर वो रुक गया। तुम जैसे कमीने के साथ में बैठकर बात करने पर लानत भेजता हूँ। तुमने ज़बरदस्ती करवाई है उससे खुद को मोहब्बत। इन आंखों से क्यों किया है तुमने मेरे साथ ये? जानते थे वो मोहब्बत है मेरी तो हटे क्यों नहीं? क्यों मुझे ताउम्र जलने की सज़ा दी है? अनान का वो सिर्फ एक जुमला सुन सका, तभी उसकी बाकिया बातों को फरामोश किए मुस्कुरा दिया। अगर मोहब्बत ज़बरदस्ती की कायल होती तो इसे मुझसे नहीं तुमसे होती। वो तुम्हारे साथ 22 साल से रह रही है। मोहब्बत ज़बरदस्ती या ममानत जैसे जबर की कायल होती तो मैं और मेरा दिल तुम्हारी वार्निंग के बाद रुक जाते। मैंने 4 साल तुम्हें इस सज़ा से भरपूर बचाने की कोशिश की। मैं सलीके से जीने का आदी शख्स हूँ, इससे कोई सरोकार न रखता आगे भी, लेकिन अपनी मोहब्बत में से डालकर छोड़ देना मेरी मर्दानगी पर दब्बा था। हाँ, अगर वो मुझसे मोहब्बत ना करती तो मैं कहीं ना होता, खुद अपनी नज़र तक में नहीं। मैंने लेकिन तुम्हारे अपनी लिए पसंद के बारे दर्दमंदी की बताने हद में आर की है नान, महसूस मत हालांकि करना ना तुम कभी। मेरे दोस्त रहे हो कभी ना हमदर्द, लेकिन तुम इसे मेरे मुकद्दर से नहीं छीन सकते और मुकद्दर का फैसला मैं या तुम नहीं कर सकते। एक ही झटके से साहिर ने उसके साथ गिरफ्त रखते हाथों को अपने नफीस गिरबान से हटाए, खुद से परे धकेला। और साहिर के समझ में उसके गुस्से और नफरत की शिद्दत अनान को बखूबी महसूस हुई। बकवास है ये सब, वो तुम जैसे घमंडी शख्स के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। इससे तुम्हारी कुर्बत जल्द गले का फंदा लगने लगेगी। तुम एक रोबोटिक इंसान हो जिसका जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं। ये ईमान की मोहब्बत नहीं, बस एक कशिश है। वो असल मोहब्बत मुझसे करती है, बस तुम्हारी जान से मैं फंस कर समझ नहीं पा रही। मैं उसका दोस्त हूँ और वो दोस्ती में जो सुकून है इसे तुम्हारे इर्द गिर्द कभी नहीं मिलेगा। मैं ईमान को तुमसे छीन लूँगा, वार्न कर रहा हूँ। अनान के फितना है इस जुमलों का साहिर पर ज़रा भी असर वाक़ई ना था, ऐसा तो मुमकिन ना था, लेकिन इसे अपने जज्बात पर लगाम डालने में महारत थी। छीन सकते हो तो छीन लेना, अगर वो मेरी है तो आखिरी सांस तक मेरी ही रहेगी। किसी माँ के लाल में जुर्रत नहीं इससे साहिर की मलकियत छीन सके, और अगर तुम्हारे बगौल वो तुम्हारी है तो मेरा इससे अपनी रूह में उतार लेना भी रायकान जाएगा, और रायकानी बहुत जल्द दिखाई दे जाती है। कोशिश करके देख लो, शायद यूँ तुम्हारे दिल का जहन्नम सर्द हो जाए। लेकिन दोबारा मेरी राह में आकर मेरी ही बीवी के बारे ऐसी बकवास करोगे तो सलीके को बाढ़ में झोंक कर तुम्हें बिना मोहलत दिए ज़मीन में गाड़ दूंगा। मेहरबान हूँ, बेगैरत मत समझना साहिर जिब्रान खान को। हटो पीछे। अपने आग होने का सबूत देना लाजमी था, और जिस तरह साहिर ने उसके सुन होश दुरुस्त किए, इस पर अनान मुठियाँ बेचता जब्त ही करता रह गया, और साहिर से राह के पत्थर की तरह धकेल कर वहाँ से चला गया। उसकी फ़्लाइट थी, तुम्हें बहुत मान है ना ईमान पर। उसकी फरिफ्ता नज़र हवा में उड़ा रही है, उसकी मासूम मोहब्बत मगरूर कर रही है। तो याद रखना, यही सब एहसास तुम्हें बहुत बुरा रुलाएंगे साहिर। मैं इसे पा सकूँ या नहीं, मैं तुम्हें वो दर्द ज़रूर दूंगा जिसे लाहासली कहते हैं। तुम ईमान को पाकर भी उसके लिए तरसोगे, और यही मुझे सुकून देगा। नान ने अपने अंदर दबे गुस्से को इंतकाम की शक्ल दे दी थी, और ये सबसे भयानक था। एक और रात गुजर गई। सुबह का नरमगी सवेरा जहान आलम पर अपनी मौजूदगी फैलाता हुआ मौसमी बदलाव का अंधिया साथ लाया। आसमान आज भी बादलों के मरगोलों से भरा था। रात चुके ईमान खुद भी थकी थी तो आते ही सो गई। एदा ने ही इसे कॉलेज के लिए उठाया, जिस पर वो उठकर मंदी मंदी आंखों से ही बिस्तर छोड़ती एदा को जकड़े कोट गई। ओ हेलो लड़की, मैं साहिर नहीं हूँ। एदा उसके चिमटने पर शरारत से घुरी, जिस पर ईमान जिसे अब तक गुजरी रात के हुमार ने खुद में गोल रखा था हंसी। अब ये आप हो भी नहीं सकती, क्योंकि पूरी दुनिया गंगाल लूँ तब भी इन जैसा कोई नहीं मिलेगा, ना इन जैसी किसी दूसरे की मौजूदगी है। पिया यार, वो बहुत अलग हैं, वो इतने प्योर हैं कि मैं हैरान रह गई। इनसे दूर जाने का कसम से दिल नहीं चाह रहा था, मेरा बस नहीं चला मैं उनके पास ही रह जाऊँ। ईमान के जज्बो शिद्दत भरे जुमलों पर एदा खुश भी हुई और फसुर्दा भी। ईमान, खुद को खो मत देना मेरी जान, आ जाओ नाश्ते के लिए, सब वेट कर रहे हैं।
एदा की नसीहत में कुछ तो था जो ईमान की मुस्कुराहट कम कर गया। आप जाएँ, मैं अशफा को पहले कॉल कर लूँ, कल इसे फ़ीवर था, पता नहीं वो कॉलेज जाएगी या नहीं, मैं जॉइन करती 5 मिनट तक। ईमान ने हाथ मुँह धोए फ़ोन उठाया, बिना हाथ मुँह धोए कमरे से निकली, सीधी जाकर लॉन में कदम रोके। अशफा की तबीयत बेहतर भी थी और वो मम्मी-पापा के साथ ब्रेकफ़ास्ट भी कर रही थी। जब ईमान की कॉल का मुलाज़िमा ने इसे बताया, मैं बात करके आती हूँ। अशफा भी फ़ोन लिए बाहर चली आई। यार हाँ जी, कैसा रहा समथिंग स्पेशल डिनर? मुझे तेरी ही कॉल का वेट था। अशफा ने फ़ोन लगते ही चहचहाते पूछा, मत पूछ, दीवानी मस्तानी हो गई हूँ। और तुझे पता है आपस की बात, मुझे ना अपने अंदर ठड़क ठड़क सा पैदा होता महसूस हो रहा है। कोजी अपना साया कर दिया ना तूने मुझ पर चंगड़ी। अब तू बता, तेरे हवाई भैया हर वक्त कहाँ से लाया करूँगी? ईमान की घबराहट और मुश्किलात ज़िंदगी पर अशबा वहीं हंसती पेट पकड़ कर दोहरी होती। कुर्सी पर लड़की, हंस मत अशबू, तेरी गर्दन दबा दूंगी। ईमान को उसकी हंसी पर गजब आया। हाँ बस तू ना उनकी एक पिक्चर करवा ले फ्रेम, मेरा काका, क्योंकि भैया रात से घर नहीं आए। उनकी नॉन स्टॉप 2 फ्लाइट्स थी, उनकी ज़िंदगी ऐसी ही होगी। वैसे एक आइडिया है, छड़ इस बीएससी को और एयर होस्टेस बन जा उनके प्लेन की, हाईवे हवा कर मैस मज़े मज़े। अशफा के ज़ालिमाना मशवरों पर ईमान को सच में एयर होस्टेस ही बनने का ख्याल मुनासिब लगा। उफ, मतलब उनकी फ़्लाइट थी और मैंने सारा दिमाग तो उनका चाट लिया था। हाय और रब्बा, जहाज़ उड़ाने के बजाय कहीं खुद ना जहाज़ बन गए हों मेरे साहिर जी। ईमान ने सदमे से उसकी बोंगियों को कोसा और फिर साहिर का ज़ख्मी हाथ याद आकर आंखों में मोटे मोटे आंसू भी ले आया। पागल, वो बहुत प्रोफेशनल पायलट हैं। काम के वक्त तो उनको अपना नाम भी याद नहीं रहता। रिलैक्स, चल मैं नाश्ता करके मिस कॉल मारती, तुझे गेट में आ जाना, बाकी बातें कॉलेज करते हैं। अशफा ने अपने ठीक होने का तो इतना सारा छेड़-छाड़ कर भी बता दिया। तभी ईमान ने उदासी से फ़ोन बंद किया और इससे पहले पलटती सामने ज़ोए को देखकर ईमान ने मुँह बिगाड़ा। उसके सिल्वर बाल सबसे ज़्यादा खटकते थे ईमान को। सुबह-सुबह किस मनहूस का मुँह देख लिया। हाँ मिस डोए, फरमाओ, क्यों काली बिल्ली बनी हो मेरे रास्ते की? ईमान की नागवारियत इस वक्त ज़ोए को चुभी तो बहुत, मगर अभी वो अपने फसाद को डालने आई थी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं था तो लो खुद देख लो अपने प्यारे साहिर को। ज़ोए ने हवासा से मुस्कुराकर चंद फोटोग्राफ्स ईमान की सिम बढ़ाई, जिस पर इसने ज़ोए पर गसील सी नज़र डाले। फ़ौरन पिक्स ली, लेकिन वो साहिर की 5-6 साल पुरानी तस्वीर थी। ये तुम्हारा साहिर है ना डार्लिंग? इसके साथ जो लड़की है ना, ये इसकी गर्लफ्रेंड भी रही थी, मतलब बहुत ओपन रिलेशन था। साथ रहने सोने, एक ही घर में रहते, खाते सोते। साहिर ने थाईलैंड में कुछ अर्सा जॉब भी की थी और फिर उनका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि साहिर को नई नई लड़कियों का शौक था। ये लड़की से छोड़ गई, फिर मैं इसे मिली। सच्ची? ज़ोए की सारी बातें सुनकर ईमान ने वो पिक्चर फिर से देखी। इसमें सिर्फ एक लड़की तो थी ही, साथ एक लड़का भी था जिसे बहुत महारत से तस्वीर से काटा गया था। मगर ज़ोए शायद उसका साया काटना भूल गई और साथ उसके हाथ में एक आध कटा हाथ बाकी बच गया। ईमान को याद था ऐसी ही तस्वीर वो साहिर के इंस्टा अकाउंट पर देख चुकी थी, तभी उसके साथ होती छेड़छाड़ फ़ौरन भाप गई। अच्छा, तो ये गर्लफ्रेंड थी और तुम इनके घर के वाशरूम का लाल बेग होगी जो तुम्हें अंदर वाली तफसील भी पता है। साथ खाते थे, सोते थे, तो वाशरूम भी जाते होंगे। और बीबी, थाईलैंड के मॉडर्न गटर की बदबू। इस लड़की के हाथ में क्या किसी जिन का हाथ है? यकीनन तुमने ये तस्वीर साहिर के किसी सोशल अकाउंट से कॉपी की, उनकी यूनी दौड़ की और मुझे आकर बहुत ही कोई लोली लंगड़ी कहानी सुनाकर अपने पैरों पर टोका मार दिया। मैंने कहा था मासूम सिर्फ मैं मुंह से लगती हूँ, अब मेरे साहिर पर इस किस्म का घटिया बहतान लगाने पर तुम्हारे साथ क्या होगा वो सोचो। ईमान ने पहले तो इन दोनों फोटोज़ को फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े की हवा में उड़ाते इस पर वेल उड़ डाली और फिर फाइनली अपने दिल की हसरत पूरी की, ज़ोए के बाल मुट्ठी में जकड़े। क्या कर रही हो वैशी? मैं कॉप्स को बुला लूँगी अगर तुमने कुछ कहा। ज़ोए को जान के लाले पड़े, मगर अभी तो ये स्टार्ट था। तो अपने कॉप्स को बुला या पॉप्स, तेरी चटनी तो मैं बनाती हूँ। रही बात पाकिस्तान की पुलिस की, जब दो औरतों का मामला हो तो वो शहर के बच्चे बीच कूदने का रिस्क ही नहीं लेते। मेरी जान, इसका रिवाज ही नहीं, क्योंकि इनको पता है जबड़ा इन्हीं का हिलेगा। ईमान ने दोनों हाथों से जी भर के उसके बाल नोचे और जब कलेजे में ठंड पड़ी तो पकड़ कर ऐसा धक्का दिया कि ज़ोए की चीखें सुनकर अहले खाना का काफिला जमा था, सबने मिलकर गिरती लड़कती ज़ोए को संभाला, जबकि नान तो ईमान के हुनहार तासरात देखकर ही अपनी जगह थम गया। हुआ क्या है लड़की, क्यों सुबह सुबह इस पर चढ़ रही हो? अरीशा ने जब बेचारी ज़ोए का उजड़ा हाल देखा तो अपना सर थाम गई। अलबत्ता नाना जान के कलेजे को भी कंबाइन ही ठंड पड़ रही थी। वो हादी और लीजा दबा दबा मुस्कुरा के ईमान का हौसला बढ़ा रहे थे। इस वाहियात नागिन को आप लोग जितना जल्दी ही यहाँ से चलता करें, वरना ही किसी को खा जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। और तुम मम्मी डैडी पे चूंगड़ी, आइंदा अपने ये फसादी हराफाती दिमाग को हम पंजाबियों से उलझाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तुम उर्दू इंग्लिश मिक्स फिरंगियों की कल मत फुस होती है ना, वहीं से हमारी का स्टार्ट होता है। ईमान ने घूर कर सबको वार्न करने के साथ ज़मीन पर गिर कर अपने कैरोटीन बालों का बेड़ा गर्क महसूस करके नफरत भरा रोती ज़ोए को भी आंखें निकाली। इनफ इज़ इनफ, मत बोलो वो मेरी बीवी है। अनान को लगा कि मतलब पूरा होने तक ज़ोए को सपोर्ट करना बनता है और ज़रा बोले, और ये आज की सबसे बड़ी भूल थी। किसी गोली के फायर की तरह ईमान न सिर्फ उसकी तरफ लपकी, बल्कि उसका मुंह जबड़े से पकड़े गाले अंदर को दुसाकर गीज़ो गजब से पंकारी। तो अपनी बीवी को कहें अनान साहब, उस सबकी बीवी माँ ना बने, समझे? वैसे अब समझ आई तुम जैसे शेर को चूज़ा बनाने के पीछे इस मनहूस का हाथ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, जिस लड़की ने तुम्हें इतना ज़लीलो ख्वार किया, इसे अब तक निकाह में रखा ही क्यों है तुमने? कहीं ऐसा तो नहीं तुम दो मिलकर कोई मकरू मंसूबा बना रहे हो? ईमान की छठी हिस्स ने हर फुट को दहलाया।
ज़ियान ने रीशा रोहा, यहाँ तक कि एदा ने भी मशकूक होते हुए अनान को देखा, जबकि अनान को सबसे नज़र चुरानी पड़ी। उठो ज़ोए, मैं तुम सबके किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। अनान ने रोती हुई ज़ोए का हाथ पकड़ा, हकारत से सबको देखता इसे उठाई, ईमान को पूरी तरह पर धकेलता बिफरी मौज बना वहाँ से चला गया। काश तुम्हारा वो हाथ काट सकती जिससे तुमने इस नर्स औरत को छुआ है अनान, और आप सब जाएं यार, ये बड़ी स्क्लैश है, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। ईमान ने सबके ऊपर नज़र भांपे सबको चलता किया, लेकिन सभी फिक्रमंद थे। तुम इसे हैंडल नहीं कर सकती ईमान, दूर रहो इस पागल से और इस औरत से भी। ज़ियान के लहजे में वाज़िया खौफ था। एदा भी मम्मी के हमरा अंदर लपकी, नाना जान ने आँख विक करते ईमान को देखा और रीशा और छोटी पलटून को भी ले गई, जबकि ईमान मुठियाँ बेच गई। अनान ने ज़ोए का हाथ कमरे में लाकर छोड़ा और गर्दन से दबोचे से दीवार से लगाया। ये प्लान था तुम्हारा? क्या तुमने कोई रिसर्च किए बिना वो सब कहा? बोलो ज़ोई, क्या वाकई साहिर का ऐसा कोई ताल्लुक था? अदनान को ज़ोई की कम अकली पर इस वक्त जो गुस्सा था इसकी इंतहा ना थी। पता नहीं, लेकिन ये सच है कि वो 6 माह थाईलैंड रहा। इसने वहाँ एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए किसी डिफेंस ब्यूरो में जॉब भी की थी। ये कंफर्म है। उस न्यूज़ से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, और वो तस्वीरें बाकी उसकी यूनिफेलोज़ की थी। उसका कोई अफेयर नहीं लगा, लेकिन हमें बनाना तो होगा, वरना ईमान कैसे इससे बदगुमान होगी। बेफिक्र हो, ये एक रिहर्सल थी। मैं जानना चाहती थी ईमान किस हद तक जा सकती है, उसका साहिर पर कितना यकीन है, ताकि मेन वार इसी मुताबिक हो। ज़ोई ने फ़ौरन से ऐसे गर्दन छुड़वाई, अपना असल प्लान बताया, जिस पर अनान भी लम्हे में कूल डाउन हुआ। रिहर्सल के चक्कर में गंजी हो जाओगी तुम, क्योंकि अव्वल तो वो किसी पर एतबार करती नहीं, कर ले तो तोड़ती नहीं। अब क्या करोगी तुम? अनान के तंज़कियात जारी थे, पर ज़ोई ने भरपूर तहम्मुल रखा। अब मैं अपने लोगों को इस डिफेंस ब्यूरो बेच कर पता करवाऊंगी कि वो कब जॉब करता था, किससे मिलता था, फ्रेंड सर्कल में कौन था। कोई ना कोई तो उसकी कमज़ोरी होगी। वैसे मुझे लगता है मैंने इस आदमी को थाईलैंड में कुछ दिन पहले देखा था। तुमने जब पिक्चर दी तब मैं इतना गौर नहीं कर सकी। ज़ोया इस वक्त कारोबारी बनकर ही बात कर रही थी, जबकि नान की कनपट्टी की रगें उभरी। शायद वो मुझ पर नज़र रख रहा था। और क्या काम होगा उसका? जॉब उसकी अगर कोई ऑफिस प्रोजेक्ट था तो मामूली ही होगी। जो भी है, सिर्फ 6 दिन दे रहा हूँ तुम्हें ज़ोया, इसके बाद सब ख़त्म। अगर तुम कामयाब होती हो तो ज़्यादा मिलेगी, और नाकाम होती हो तो मौत। अनान ने उसकी आंखों में हकारत से आंखें गाड़ते वान किया, और उसके उजड़े बिखरे बालों पर निगाहें गीज डालता कमरे से निकल गया। ज़ोया ने अपने बाल ड्रेसिंग के सामने आकर ब्रश किए। ईमान, यू विल पे फॉर दिस इवल डार्लिंग, तुम मेरे बहुत काम की हो। जहरअंधुत कलामी करते ज़ोया ने अपने बाल संवारने के साथ ही नज़ कहका लगाया। बैंकॉक की पुरौनक सड़कों पर खूबसूरत सी सुबह चहक रही थी, लेकिन इस वक्त कहर तो वो था जो इस अंधियारी चार दीवारी के अंदर बरपा था। परवेज़ हटक ने फरजाम साया के सबसे अहम साथी गुमैंजो को पकड़ा था, और इसकी तफ्तीश के सिलसिले में आयस खुद वेयर हाउस पहुंचा। वो आदमी वहाँ की मकामी ज़ुबान ही समझता था या इंग्लिश, तभी आयस ने इससे इसी में बात की। इफ़ यू वांट टू सेव योर लाइफ टेल मी वेयर दैट वीडियो इज़, यू विल बी सेफ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी सलामत चाहिए तो बता दो वो वीडियो कहाँ है, बच जाओगे। हटक ने उसकी ऐसी हालत तो कर ही दी रात से अब तक कि अब वो सिर्फ सच ही उगल सकता था। इस आदमी की आंखों में दहशत साफ साफ दिखाई दे रही थी। आई डोंट हैव दैट वीडियो, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। वो वीडियो मेरे पास नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। इस आदमी ने डरते हुए बताया, जिस पर इसकी पेशानी पर शिकने उतरी। यू हैव दैट वीडियो, माई इन्फॉर्मेंट कैन नॉट बी ए लायर, आर यू टेलिंग मी और आई विल मेक अ होल इन योर हेड। वो वीडियो तुम्हारे पास ही है, मेरा मुखबर झूठा नहीं हो सकता। बता रहे हो या तुम्हारे दिमाग में सुराख बनाओ? आज की बर्दाश्त दम तोड़ती महसूस हुई, जिस पर वो आदमी डर कर फौरी सर हिला गया। आई हैड दैट वीडियो बट अ मंथ अगो अ ब्लड thirsty man like you stole in it from me. He was a very strange man. For jams I don't know about this, not Zoe ma'am. Otherwise they would have built my grave. This man beat me a lot, took that video from me. वो वीडियो मेरे पास ही थी, लेकिन एक माह पहले एक तुम जैसे खुनहार आदमी ने वो मुझसे हत्या ली। वो बहुत अजीब आदमी था। ये बात फरजाम सर को भी नहीं पता, ना जोए मैम को, वरना वो मेरी कब्र बना चुके होते। इस आदमी ने मुझे बहुत मारा, मुझसे वो वीडियो ले ली। गुमहंजो की बातें हटक और आइस दोनों को परेशान कर गई। हरी, अब ये कौन सा आदमी था जिसने वो वीडियो हत्याई और क्यों? इससे पहले आइस से मजीद कोई सवाल करता, न जाने कहाँ से उठती गोली आकर इस गुमहंजो का काम तमाम कर गई। कोई बाहर वाले कॉरिडोर से इसे शूट करके भागा था। तभी हटक ने अपने 2 आदमी पीछे दौड़ाए और ख़ुद भी आइस को इशारा करता बाहर निकला, जबकि आइस का दिमाग तो इस दूसरे आदमी ने उलझा दिया था। फरजाम साया का ही वो आदमी था जिसने गुमैंजो को शूट किया ताकि वो वीडियो को सेव रख सके, लेकिन आइस की असल तशवीश तो अब शुरू थी। फरजाम साया अब अहम ना था, बल्कि वो आदमी अहम था जिसने नान की मर्डर वीडियो हत्याई। गुड मॉर्निंग। साहिर के नाश्ते के वक्त घर आमद पर तीनों मुस्कुराते नफूस एक साथ पलटे, जहाँ कैप्टन साहिर जिब्रान तीनों को तकते करीब आकर रुक चुके थे। मॉर्निंग जी मॉर्निंग, सोने हो खूब। साहिर मियाँ, रात के डिनर के बारे कोई तुमसे पूछ ना ले तभी निकल लिए हवा में। चलो बताओ कैसा रहा डिनर? पापा के आते ही मस्ती भरी तफ्तीश पर अशफा और मनीरा भी खुशगवार तवज्जो साहिर पर मरकूज़ कर चुकी थी, मगर मोहतरम की तवज्जो तो उसकी फ़ोन पर आती ईमान की कॉल ने खींची। जैसा आपका मम्मी के साथ पहला डिनर रहा था, बिल्कुल वैसा। थक गया हूँ, पहले फ्रेश होकर चेंज कर लूँ, फिर आपकी तशरीफ़ी करवाता हूँ। साहिर के फ़ोन की रिंग तीनों ने सुनी, तभी तो साहिर के बहलाने और टरहाने पर तीनों जेलस हुए। ये गया हमारे हाथों से। जहान को नई परेशानी चिमटी, जबकि साहिर ने रूम में आते ही उमड़ती जमाई रोकते पहले ईमान की कॉल ली, जो अब तक बेकरारी से लान में जले पैर की बिल्ली बने घूम रही थी। साहिर, अब कहाँ है? मुझे आपके हाथ और दिल की फ़िक्र हो रही है। अपनी सारी तवज्जो मुझे दें, मुझे बहुत अहम बात पूछनी है। ईमान का कॉल रिसीव करते ही बेकरार लहजा भांपता साहिर अपने रूम
की खुली खिड़की के पास आ बैठती लिली को देखकर मुस्कुराया। दिल और हाथ दोनों ठीक हैं, पूछो। साहिर ने इशारे से लिली को खामोश करवाया। वो फ़ौरन चहचहाना रोककर अपने दाने चुगने लगी। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी या है? सच्ची बताइएगा। ईमान के सवाल पर साहिर मुस्कुराया। शरारत से सूझी, हाँ है, लिली नाम है उसका। साहिर के जवाब पर ईमान ने दिल सा थामा। थोड़ा सा चक्कर भी आया, लेकिन फिर ये सोचकर साहिर पर प्यार भी आया कि वो इसे कैसे साफ साफ बता रहा है। तो इसी से शादी कर लें, आंसू ब मुश्किल रोकते कमज़ोर से लहजे को हवा बनाते कहा, जिस पर साहिर इसी महजूज मुस्कुराहट के संग कदम उठाता खिड़की की जाने बढ़ा तो नज़र बेख्तियार आलम हाउस के लान में वहीं नीचे ज़मीन पर बैठकर रोने की तैयारी पकड़ती ईमान पर गई तो हंसा। उसका हंसना ईमान को सदमे में गर्क कर गया। मिलना चाहती हो लिली से? साहिर के सवाल पर ईमान को लगा जैसे वो इसे देख रहा है, तभी फौरी सर उठाया और सच में वो इसे दिखाई दिया। साथ में वो नीली चिड़िया जो खिड़की की ओर से साहिर के हाथ पर बैठ चुकी थी। ईमान फौरी नरम घास पर से उठ खड़ी हुई। शी इज़ लिली, मेरी दोस्त। इससे शादी नहीं कर सकता वरना दुनिया क्या कहेगी ईमान। साहिर की मुस्कुराहट ने लम्हा लगाते ईमान के होंठों की जानिब हिजरत की। वो चलती हुई मज़ीद करीब आई। लिली जिस तरह साहिर के हाथ पर बैठी, वो एक खूबसूरत मंजर था। अगर कोई लड़की होती तो मैं आपको मार देती आकर। ईमान ने साहिर की तरफ देखते कड़े तेवर दिखाए, जिस पर वो खिड़की की जानिब झुका। अपनी ज़िंदगी के पिछले 4 सालों की गारंटी दे सकता हूँ, इनमें किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं। इससे पहले कि नहीं वो मेरे लिए अहम ज़िंदगी ना थी। मेरे इस दिल में तुम्हारे नाम की चमक इन्हीं 4 सालों में बेदार हुई और उसके बाद में अमानतदार बन गया। साहिर के देखने का मोहब्बत पर अंदाज और ये तराफ ईमान को पहाड़ जैसा मजबूत कर गया। अब कोई ईमान को साहिर के लिए बेयकीन करता करता मर भी जाता तो वो बदगुमान ना हो सकती थी। अब जब तक आप खुद आकर ना कहें कि मैं अमानतदार नहीं रहा, तब तक के लिए मेरा एतबार आप पर से कोई हिला भी नहीं सकता। वैसे मैंने लिली को बहुत बार आपके पास देखा, मुझे इल्म ना था आप मेरे अलावा भी किसी के इतने फेवरेट हो सकते हैं। ईमान की लौट आती मुस्कुराहट इस ज़बर आलूद मौसम को और हसीन कर गई। इसका और तुम्हारा हूँ बस। कॉलेज नहीं जाना तुमने? साहिर के मनपसंद इतराफ़ के बाद तो ईमान का दिल चाह पर मिल जाए और वो लिली की तरह उड़कर उसके कमरे की खिड़की में जा डेरा लगाए। जाना है कल के लिए? सॉरी, मैं थोड़ी ज़्यादा फ्री हो गई थी। ठड़कपन मत समझिएगा इस किस को, वो मेरी फीलिंग्स थी। ईमान का शर्मीला सा अंदाज साहिर को इस लम्हे के सहर में फिर से मुब्तला कर गया, जिस पर साहिर ने इसे उनसियत के संग तकते सर को जुम्बिश दी। वो यूं कमज़ोर करते पहलुओं से जुड़ी बातें सर हिलाकर समेटता बहुत प्यारा लगता था। हाँ, बाएं हाथ का और दिल का ख्याल रखिएगा। मज़ीद शायद आज ईमान के पास बातें ना रही, ना ताब कि वो उसके मदहोश करते देखने को सहे। तभी कॉल ऑफ करती, बहुत सी ख्वाहिशों को टालती वो घर के अंदर दौड़ गई, जबकि साहिर के लिए खूबसूरत मौसम दुगना हसीन कर गई। जारी है। कैसी लगी मज़ेदार सी किस्त? कौन होगा वो आदमी यानी गेस्ट? चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ताकि मैं रोज़ मज़े मज़े की किस्त दे सकूँ। तो मिलते हैं 18 बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और मज़ेदार किस्त में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।